So let us begin with where we have left. We have left from somewhere 10th sum. Okay. So now 11th sum. Answer in one word or show method where required. The degree of polynomial 3x raised to 7 minus 6x raised to 5 plus 4x cube minus x square minus 5 is जो भी मैक्सिमम पावर होगा and that is 7. Okay. Next is sum number 12th. Write a degree of a zero of a polynomial. What is a zero of a polynomial? Let's say zero of a polynomial मतलब कि कोई भी एक कांस्टेंट टर्म होगा. ठीक है. Let's say ये 7 है ना, ये एक कांस्टेंट टर्म है, बराबर. जीरो पोलिनोमियल. तो यहां पे उसका डिग्री क्या होगा? कैन आई राइट दिस लाइक दिस 7x रेज टू 0. x रेज टू 0 मतलब क्या? किसी का भी पावर हो रेज टू 0, इसका मतलब क्या होगा कि ये लिखा जाएगा 7 into 1 which is equals to 7. बराबर है. सो योर आंसर फॉर 12th कि what is the write the degree of a zero of a polynomial, your answer will be 0. Okay. Zero of a polynomial की डिग्री भी क्या होगी आप लोगों की? 0. Next is sum number 13. Very simple. Write the coordinates of origin. It is nothing but 0, 0. Sum number 14. How many subsidiary triangles are present in in Sri Yantra? कितने हैं? 43. Okay. So answer is 43. Sum number 15. From which place Thales belongs to? कहां से है Thales? Thales कहां से है? Anyone? इजिप्ट की ग्रीस? ग्रीस की इजिप्ट? आर यू श्योर? इजिप्ट है कि ग्रीस है? इजिप्ट आता है, इजिप्ट. नेक्स्ट, मेंशन एनी 2 पार्ट्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल. पार्ट्स बताने हैं तो क्या बता सकते हो आप लोग? ठीक है. एडजेसेंट साइड्स बोल सकते हो, एंगल्स बोल सकते हो. ठीक है. सो पार्ट्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल में आप लोग लिख सकते हो साइड्स, एंगल्स. नेक्स्ट इज 17th. डैश इज द लार्जेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल. इट इज डायामीटर. डायामीटर इज द लार्जेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल. Sum number 18. The quadrilateral is dash which has only one pair of opposite sides parallel. कौन सा होगा? कौन सा होगा? ट्रेपेजियम. ठीक है. आंसर आएगा ट्रेपेजियम क्योंकि उसकी एक ही साइड पैरेलल होती है. Sum number 19th. An arc is dash when its ends are the ends of diameter. तो वो क्या होगा? Semicircular arc. Okay, that is semicircular arc. Next, sum number 20. In an isosceles triangle, if measure of the two equal sides have 12 centimeters and the perimeter is 30 centimeter, then measure of the third side is dash centimeter. देखो यहां पे क्या दिया है? A दे दिया है 12, B दे दिया है 12 और पेरीमीटर हम लोगों को दे दिया है 30. So you need to find what? C. And how you will find C? P is equals to A plus B plus C.
30, 12 प्लस 12 हो गया 24 प्लस c, तो c की वैल्यू आएगी 30 माइनस 24 एंड दैट इज इक्वल्स टू 6. ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज द राइट ऑप्शन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट? क्या होगा प्रोबेबिलिटी का? कौन सा ऑप्शन आएगा? ए, बी, सी या डी? इट इज ए ऑप्शन. क्यों? बिकॉज प्रोबेबिलिटी लाइज बिटवीन 0 एंड 1. मतलब 0 भी करेक्ट है, तो 0 लेस देन इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट लेस देन इक्वल्स टू 1. ओके, got it each and everyone? Next, the coin is tossed 100 times and 49 times tails comes up. What is the probability of getting tail if coin is tossed once again? तो क्या आएगा? 49 upon 100 and that is 0.49. Next is match the following. Total surface area of hemisphere. Total surface area of hemisphere is 3 pi r square. Okay. The next is mode. Mode जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है वो कौन सा है नंबर? It is 52. Okay. So यहीं पे आपका सेक्शन ए जो है वो ओवर होता है. ओके बच्चों, सेक्शन बी. सेक्शन बी, आंसर द फॉलोइंग एनी 9 क्वेश्चंस बाय शोइंग मेथड इन एवरी सम. ठीक है, क्वेश्चन 25 to 36 each carries 2 marks. Express the following in the form of p by q, where p and q are integers and q is not equals to 0. ठीक है, और क्वेश्चन है 25 0.47 बार. ठीक है, 0.47 बार, 7 के ऊपर बार है. हाउ यू विल सॉल्व? लेट x equals to 0.477777, give it number 1, then multiply it with 10. So multiply by 10 on both the sides. So 10 multiplied by x is equals to 0.47777 multiplied by 10. So it will be 10x into 4.7777. Give it number 2. Again multiply it with 10. So it will be 10x into 10 is equals to 4.7777 into 10. So 100x is equals to 47.777 and so on. Give it number 3. 3 और 2 के बाद के डेसिमल्स देखिए तो दोनों सेम है. देन यू कैन डू 3 minus 2. 100x minus 10x is equals to 47 minus 4. So it will be 90x and that is equals to 43. So x is equals to 43 upon 90, sum number 25. ओके बच्चों, इसमें कोई डाउट? नेक्स्ट इज सम नंबर 26. क्या लिखा है? इन विच क्वाड्रेंट और विच एक्सिस डज ईच ऑफ द पॉइंट्स लाई? वेरीफाई योर आंसर बाय लोकेटिंग देम ऑन कार्टेशियन प्लेन. सबसे पहले आप लोगों को हर एक पॉइंट का डिस्क्रिप्शन देना है कि ये कौन सा पॉइंट कौन से में है. ठीक है, एंड देन फिर आप लोगों को प्लॉट करना है इन योर ग्राफ. तो -2,4 ये होगा आपका सेकेंड क्वाड्रेंट. ओके, नेक्स्ट इज 3, -1. 3, -1 will lie in 4th quadrant. The next
-1, 0 will lie on x एक्सिस, या ओ एक्स डैश ऐसा भी लिख सकते हो, या सिर्फ एक्स एक्सिस ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 1, 2 दोनों पॉजिटिव है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, -3, -5 it will be third quadrant, एंड बस इतना है। तो इतना कीजिए एंड नाउ प्लॉट इट इन योर ग्राफ पेपर, ईच एंड एवरीवन। सम नंबर 27, sum number 27, express the following linear equation in the form of ax plus by plus c is equals to 0 and indicates the value of a, b and c in each case। तो सबसे पहला है y -2 is equals to 0, बराबर। तो यहाँ पे आप लोगों को इसको एक्सप्रेस करना हो तो यू हैव टू राइट इट लाइक दिस, 0x plus y -2 is equals to 0 where a is equals to 0, b is equals to 1 and c is equals to -2। एंड सेकंड में क्या है, x equals to 3y, ठीक है। तो इसको b स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है तो x -3y प्लस 0 is equals to 0, प्लस या माइनस आप लोग कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। देन a is equals to 1, b is equals to -3 and c is equals to 0। देखो एक खास चीज याद रखना, कोएफिशिएंट लिखने होते हैं इसमें। कोएफिशिएंट का मतलब क्या होता है, जो भी x के आगे की y के आगे की वैल्यू होती है वो ये सम्स में लिखनी होती है। Then next is sum number 28. Write 4 solutions of 2x plus y is equals to 7. 2x plus y is equals to 7. तो box preparation, x and y 0, 1, 2 and 3। तो add x equals to 0, 2 into 0 plus y is equals to 7, बराबर। तो y की वैल्यू आ गई 7। देन आप लोगों को मैंने सिखाया था 2 का डिफरेंस आएगा, लेकिन प्रैक्टिस करने की। तो एट x equals to 1, 2 into 1 plus y is equals to 7, तो y is equals to 7 minus 2, y is equals to 5। Again at x equals to 2, 2 into 2 plus y is equals to 7, 4 plus y is equals to 7, y is equals to 7 minus 4 which is equals to 3। and last at x equals to 3, 2 into 3 plus y is equals to 7, 6 plus y is equals to 7, y is equals to 7 minus 6, 1। देख लो, बराबर है, राइट और रॉन्ग, राइट ऑब्वियसली। चलो मूविंग अहेड, सम नंबर 29। In figure, AB is parallel to CD and CD is parallel to EF and y is to z का रेशियो है 3:7। Find x, ठीक है, find x। अब अगर आप लोग डायग्राम ध्यान से देखोगे तो ऐसी 3 लाइन है, यहां पे है x, यहां पे है y और यहां पे है z, ठीक है। आपको फाइंड करना है x की वैल्यू। ध्यान से देखना, AB is parallel to CD and CD is parallel to EF, then according to theorem 6.6, ठीक है, according to theorem 6.6 AB is also parallel to EF। And if AB is parallel to EF, then can I write angle X is equals to angle Z, क्योंकि alternate pair of angles है, बराबर, they are
alternate pair of angles. Now what? y और z का रेशियो दिया है, y/z का रेशियो दिया है, which is 3:7, लेकिन x और z इक्वल है, तो कैन आई राइट y/x इज इक्वल टू 3:7. एंड नाउ व्हाट? ये तो देखो इंटीरियर पेयर ऑफ एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है, बराबर. तो कैन आई राइट x प्लस y इज इक्वल टू 180, और लिखो इंटीरियर पेयर ऑफ एंगल्स, एंड x की वैल्यू होगी इसकी 7a लिख लेते हैं क्योंकि रेशियो के फॉर्म में है, प्लस ये हो गया 3a एंड दैट इज इक्वल्स टू 180. 7a प्लस 3a इज 10a एंड दैट इज इक्वल्स टू 180. तो a की जो वैल्यू आई वो है 180 अपॉन 10, 18. अपने को फाइंड करना है x विच इज इक्वल्स टू 7a, 7 into 18, ठीक है, एंड दैट इज नथिंग बट 126. सो x की वैल्यू आ गई आप लोगों की 126. सो सम नंबर 27, 28 एंड 29. सम नंबर 30. ड्रॉ अ फिगर having two parallelograms lying between the same parallels and have common base. मतलब यहां पे आपको सिर्फ ड्राइंग करना है दो पैरेललोग्राम जिसका बेस कॉमन हो, लेट्स से ए बी सी डी, और दूसरा भी पैरेललोग्राम जिसका बेस सेम हो और लाइन बिटवीन द सेम पैरेलल्स. देन यू कैन ड्रॉ इट लाइक दिस. सी, यहां पे मैंने P और Q ले लिया, तो PQCD बराबर है. ये भी एक पैरेललोग्राम है which lies between PB and CD. ठीक है, समझ में आया? तो यहां पे आप लोगों को लिखने का कॉमन बेस हमारा है CD. पैरेललोग्राम के नाम लिखो कि ABCD एंड पैरेललोग्राम PQCD, और लाइन बिटवीन द सेम पैरेलल्स तो PB पैरेलल टू CD. समझ में आया? ऐसा पूरा लिख देने का. ओके, चलो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 31. Which of the following figure lie on the same base and between the same parallels? In both the cases, write common base and two parallels. सब ये डायग्राम देखोगे दोनों, ठीक है, तो you will find, मैं डायग्राम ड्रॉ कर लूं for those students who do not have papers. Something like this is given. A B P Q C D R. आप अगर ध्यान से देखोगे ये वाले डायग्राम में तो पैरेलल्स तो है बराबर, बट कॉमन बेस नहीं है, ठीक है, क्योंकि ट्राइंगल आर पी और क्यू का बेस हो गया पी क्यू, ठीक है, और ए बी सी डी का जो बेस है वो है लेट्स से बी सी. तो बेस कॉमन नहीं है, और लाइन बिटवीन द सेम पैरेलल्स तो एडी पैरेलल टू बीसी, लेकिन ये दो चीज का कॉमन बेस नहीं है, ये खास ध्यान रखना, ठीक है. सो देयर इज नो कॉमन बेस, ऐसा लिखना पड़ेगा. एंड नेक्स्ट सम इज, उसी में दूसरा ऐसा है, समथिंग लाइक दिस, P T S Q एंड R. अब यहां पे आप लोगों को देखोगे तो देखने को मिलेगा कॉमन बेस ट्राइंगल TQR है और पैरेललोग्राम PQRS है. सो आपका कॉमन बेस हो गया, कॉमन बेस इज QR एंड पैरेलल्स कौन से होंगे? PS पैरेलल टू QR. सम नंबर 30 and 31, राइट इट डाउन.
Sum number 32, very important. Two circles of radii 5 centimeter and 3 centimeter intersect at 2 points and the distance between their center is 4 centimeter. Find the length of common chord. तो ये भी अपने टेक्स्ट बुक का ही सम है. Two circles intersect in two different point. Let's say ये ए बी हो गया, यहाँ पे एक सेंटर है O और यहाँ पे है दूसरा सेंटर N. ठीक है, राइट, O एंड N सेंटर है. अब देखो ओ ए जो रेडियस है लेट्स से उसको हम लोग 5 सेंटीमीटर बताते हैं और ए एन जो रेडियस है लेट्स से इसको हम लोग 3 सेंटीमीटर बताते हैं. तो ये हो गया सेंटर डिस्टेंस. ए बी फाइंड करना है, बराबर है. और बीच में एक पॉइंट ले लेते हैं, लेट्स से एम, ओम एन, बराबर है. चलो, तो सबसे पहले let us assume ohm is equals to x and then distance between the center is given 4 centimeter. Okay, so what will be, अगर ohm अपना x है तो mn कितना होगा, mn will be 4 minus x, बराबर है. सो mn आ गया 4 माइनस एक्स. अब देखो सेंटर से पास होने वाला कोई भी कॉर्ड, ठीक है, राइट एंगल बनाता है. सो इन ट्राइंगल ओ एम ए बराबर है ओम स्क्वायर प्लस एम ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ ए स्क्वायर. ओम का स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर, एम ए का स्क्वायर नहीं पता है और ओ ए स्क्वायर वो है अपना 5 का स्क्वायर विच इज 25. तो एम ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 माइनस एक्स स्क्वायर. इसको नंबर 1 दे दो, बराबर. एंड नेक्स्ट इज सेम वे इन ट्राइंगल ए एम एन, am square plus mn square is equals to an square. ठीक है, am square या mn square दोनों सेम ही रहेगा तो am square ही लिखते हैं. प्लस mn मतलब क्या है, 4 माइनस x का स्क्वायर एंड an ये है an तो 3 का स्क्वायर विच विल बी 9. तो am स्क्वायर विल बी, देखो 9 माइनस 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये पूरा टर्म को मैंने वो साइड ले लिया. ठीक है, सो 9 माइनस ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, बराबर. राइट और रॉन्ग, राइट. ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर. नाउ ओपन योर ब्रैकेट. 9 माइनस 16 प्लस 8x प्लस माइनस एक्स स्क्वायर. ठीक है, ओके. एंड यहां पे देखो ये भी am स्क्वायर ही है, ये भी am स्क्वायर है, ये भी am स्क्वायर है. दोनों को कंपेयर कीजिए, कंपेयर 1 and 2. सो 25 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 माइनस 16 कितना होता है पता है, माइनस 7. ओके, प्लस 8x माइनस एक्स स्क्वायर कैंसल. ये भाई साहब यहाँ पे आ गया तो 25 प्लस 7 हो गया 32 इज इक्वल्स टू 8x. तो 8x की जो वैल्यू है, सॉरी x की जो वैल्यू है वो आ गई 4 सेंटीमीटर, क्योंकि 32 डिवाइड बाई 8 एंड दैट इज 4 सेंटीमीटर. x मिला अभी तो x. ठीक है, हम लोगों को फाइंड करना है ए बी, तो am फाइंड करना है. तो am स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 माइनस x का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर विच विल बी 16 एंड am स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9. तो am आया 3 सेंटीमीटर. तो ऑब्वियसली mb भी कितना आएगा, mb विल बी 3 सेंटीमीटर. तो टोटल ab कितना होगा, ab विल बी am प्लस mb which is equals to 3 plus 3 plus 3 6 centimeter. End of sum number 32.
and today's session as well. Okay बच्चों.